This class will be revision for all of you. So yeah, that will be better for me and for you. So today we'll be recapitulating about history taking. Okay, so tell me, what are the first few things you will ask in case of history taking? सबसे প্রথমে এটুকুই জিজ্ঞেস করবো, why are you asking these things? হ্যাঁ, যেটা জিজ্ঞেস করবো তখন বলতে পারবে না, সেজন্য যেটা যাকে জিজ্ঞেস করবো তা সে বলবে। বল। Okay, this thing is called patient particulars or patient information or patient details. ঠিক আছে? Why? Because this is needed to differentiate the patient from others. Okay, to discriminate or differentiate the patient from the other patient, because the patient may be of same name. Okay, may be of around same address. The religion may be same. The age may be same. Okay, sex may be same. तो उसके लिए एक एक पर्सन के ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए. तो one patient's treatment definitely will vary from the other. So to this patient particular is important for differentiating the patient and identifying the patient in case of any future reference. So this is his identity. Okay, his or her, this is their identity. So that's why you have to take it to make your history taking and make your occupation easier, because as a doctor we don't see only one patient, we see multiple patients. So any test you will have to do, anything, this name and these things will go along. Okay, ये गलत हो जाए तो इसका टेस्ट उसके ऊपर चला जा सकता है. तो दिस इज द पेशेंट particular, that's why it's very important. Okay, next patient particular है 6 points. आप कोई प्रिस्क्रिप्शन में देखोगे तो there will be 6 points you will see always. That is name, age, sex. Okay, then address, religion, occupation. इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए एकदम. Name, age, sex, address, occupation, religion. Next, then what we do? चलो, ए आप लोग नए हो ना, आज ही घर से आए, फिर देर कैसे हुआ? देर कैसे हुआ? फिर तो पहले आना चाहिए था. चलो, आपके लिए हम दूसरे बार कितना बार शुरू करें? এই সবার হয়ে গেলে ডাকবে আমাকে. ओके, ठीक है. और आप नए घुसे हो? अभी घुसे ना? उठो जी, आप उठो, आपका नाम बताओ. मैं कभी देखा नहीं आपको, इसीलिए. क्या नाम है? सुमन कुमार. घर कहाँ है? बैठो. ठीक है. और तुम्हारे साथ वो लड़की कौन घुसी थी? ओए जो तुम्हारा नाम की क्या? तनाज. घर किधर है? गुड़गांव. काफी दूर है. ठीक है, इसलिए देर हो गई. कोई बात नहीं, ट्रेन भी लेट चल रहा है. आप बताइए, ये क्या हम पढ़वा रहे हैं? What am I teaching? Is this your second class of history taking? You're also? So these things you already know at least once. तो okay. Subhasis sir taught you? This is your first class. Okay, and your? आप तो पहले से थे. তোমাকে তো আমি আগে দেখেছি. आपको मैंने पहले देखा था नहीं? एक दो क्लास अटेंड नहीं किए हो? जी, क्लास में देखा या बाहर देखे? तो आप पुराना स्टूडेंट है ना? तो ये वाला आपका कौन सा क्लास है? कैसे? क्यों? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, फिर अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि बाकी सारा लोगों का रिवीजन चल रहा है. बैठ जाओ. बाकी सारा लोगों का रिवीजन चल रहा है, आपका नया चल रहा है. ठीक है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हिस्ट्री टेकिंग हम क्यों लेते हैं पेशेंट का? जब आप देखे हो पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. वाई क्यों देते हैं प्रिस्क्रिप्शन? उसमें क्या लिखा रहता है? आपका ट्रीटमेंट. एंड ट्रीटमेंट लिखने से पहले आपको पेशेंट को एसेस करना है, इसीलिए आपको पूरा कुछ पेशेंट के बारे में जानने का जरूरत है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट हिस्ट्री टेकिंग. हिस्ट्री ऑफ व्हाट? हिस्ट्री ऑफ द डिजीज और हिस्ट्री ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट. सो व्हेनेवर द पेशेंट कम्स, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 4-5 पॉइंट आप लिखा है, ऑटोमेटिकली प्रिंट करते हुए देखोगे. दैट इज नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन लिखा नहीं रहता है, लेकिन हम इधर ऐड करते हैं. ठीक,
क्योंकि इसमें भी हमें काफी कुछ पता चल सकता है and it also helps to differentiate the patient from other patient. This thing is called patient identity or patient particulars, right? So why? Because this thing actually identifies the patient and differentiates it from the other person, so that when further you send this thing or send this patient for various tests and all, okay, उसका अगर नाम एज ये सही नहीं रहेगा तो इसका टेस्ट उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है. सो टू डिफरेंशिएट दैट एंड टू avoid any अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस, ये सब हमको नोट करना पड़ेगा. ओके, तो इतना ही हुआ था. फिर हम जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है. 6 पॉइंट है. नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, भूलना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, उसके बाद डॉक्टर क्या पूछता है, এই কি জিজ্ঞেস করে ডাক্তার তারপরে? তুমি হ্যাঁ বাংলায় বলো কি জিজ্ঞেস করে डॉक्टर. तुम्हें बोलवे तुम्हारा चीफ कॉम्प्लेंट्स. ओ तो आप हिंदी हो, ये कोई बात नहीं, आप हिंदी में बताओ. डॉक्टर क्या पूछते हैं आपको? वेरी गुड. तो डॉक्टर जिज्ञेस करबे जे की হয়েছে. So that means he is asking about your complaint. Okay, so we have to explain to him যে আমার এই হয়েছে. So any kind of problem may happen. Total body में सर से पाँव तक कुछ भी हो सकता है. तो any kind of thing you have to assess some things. First is from এই সবচেয়ে আগে তুমি বলো কি অ্যাসেস করবে. হিস্ট্রি চিফ কমপ্লেন্ট তুমি কিভাবে লিখবে? হাউ উইল ইউ রাইট দ্য চিফ কমপ্লেন্ট? এই কে পারবে বলো? ও না, ও পারবে, হ্যাঁ বলো. ঠিক আছে, কিন্তু লিখবে কিভাবে? Like एक sentence, one if someone asks you to write a sentence about that patient, so what will be the pro form of the sentence? What will you ask the patient for after that? The duration. Okay, आपको पूछना पड़ेगा कि पेशेंट कितना दिन तक सही था. So आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि the patient was apparently well, like कितना दिन पहले सही था, सोचो 7 दिन बोले. The patient was apparently well 7 days ago. Since then she suddenly developed, उसका जो कॉम्प्लेन होगा उसका रहेगा, ठीक है. सडनली डेवलप हेडेक, सडनली डेवलप बॉडी एक, सडनली डेवलप फैटिगो, सडनली डेवलप पेन, एनीथिंग. ओके, सडनली डेवलप करे तो सडनली टर्मটা ইউজ করবে. ओके, सडनली डेवलप पेन एंड नाउ हैज कम टू मी फॉर और कम टू द डॉक्टर फॉर असेसमेंट. तो दैट इज योर चीफ कॉम्प्लेंट्स. कितना दिनों से है एंड क्या हुआ है. उसके बाद आपको डिटेल लेना है, बिकॉज दिस मच इज नॉट एनफ टू नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट. तो ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मतलब उसका प्रेजेंट इलनेस हो, जो वो बोला कि मेरे एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं 7 दिन से, तो फिर आपका चीफ कॉम्प्लेंट हो गया. क्या होगा? एब्डोमिनल पेन फॉर 7 days. सिंपल. परसों दिन पड़े गए, धरो परसों वो गिर गया है, तो इस कॉम्प्लेन विल बी हिस्ट्री ऑफ फॉल 3 days ago. सिंपल, इतना ही. This is yes chief complaints. History of fall 3 days ago, pain in relevant region, যে রিজিয়ন বলবে, ঠিক है. এই তুমি একটু একটু বাংলা বুঝতে পারছো এখন? ওর পাশে नहीं समझ आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, मुझे बताना, ठीक है, कोई बात नहीं. तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपको डिटेल्स लेना होगा कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. ओके, सो हिस्ट्री मींस यू हैव टू फर्स्ट ड्यूरेशन आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो, ठीक है. देन आपको कुछ और चीज पूछना पड़ेगा. द टाइप, द पीरियोडिसिटी. टाइप मीन्स कौन सा टाइप का है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, इंटरमिटेंट है. ओके, सपोज कुछ भी बोले, वो कंटिन्यू होता है वो प्रॉब्लम या इंटरमिटेंट होता है. उसका पीरियोडिसिटी, इसमें 2-3 शब्द लिखा नहीं है. पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मीन्स इफ इवन इफ फीवर इज कमिंग, इफ एनी क्रैम्प इज कमिंग, इफ इट्स पीरियोडिक और नॉट, इफ इट्स एनी स्पेसिफिक टाइम रिलेटेड. लाइक कभी कभी लोगों को क्या होता है, they have abdominal cramps or pain, okay, sudden heartburn, sudden burn on this side, okay, left side of this hypochondrium, ये सब होता है उसको on his empty stomach. okay, कभी कभी हो सकता है आफ्टर ईटिंग, हो सकता है. तो आपको स्पेसिफाई करना है कि द टाइम स्पेसिफिसिटी, कोई टाइम स्पेसिफिक है, फीवर आ रहा है, सुबह आता है शाम को आता है, ऐसा कोई पीरियोडिसिटी है या रेगुलर नॉर्मल, मतलब সাডেন অনসেট, এইভাবে এই টার্মগুলো ইউজ করতে হবে. সাডেন অনসেট ফিভার, ওকে, ইফ ইট সাডেন অনসেট অর it is following any particular arrangement or particular periodicity. then the intensity, ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, ठीक. फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मींस द सिवियरिटी ऑफ दिस डिजीज. पेन हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हुआ है, कुछ भी हुआ है, द इंटेंसिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना. okay, if you are suffering too much, if you are suffering less,
पेन होगा तो कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो इस वजह से ये सब अगर पूछोगे तो आपको ओवरऑल एक डिटेल मिल जाएगा कि क्या डिजीज हुआ है, कितना दिन से हुआ है, कौन सा टाइप का है। ওকে অ্যান্ড অলসো আরেকটা যেটা বললো অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস। ওকে এখানে এটা লেখা নেই, एसोसिएटेड सिम्टम्स भी इसको पूछना है। एंड ऑल्सो आपको पूछना है इफ द पेशेंट हैज टेकन एनी ड्रग। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ द पेशेंट हैजंट कम टू यू विद इन 1 or 2 days, most probably they have tried to correct this by some taking some medication either by themselves or from the any nearby doctor। उसके बाद उसका सही हुआ नहीं हुआ है इसलिए वो तुम्हारे पास आता है। तो आपको पूछना पड़ेगा कि कोई दवाई लिए थे, if you have taken the medication, if the disease or the problem you are suffering from has been subsiding after you have taken the medication, is it repeating after taking the medication, how frequently is it repeating after taking the medication। सपोज आप ले रहे हो, आपका 7 घंटा 8 घंटा 1-2 दिन बाद वापस आया है, ओके that means that you have to ask about the history of recurrence। okay इसका recurrence बोले recurring deposit হয়, रिकरिंग কথাটা तो जानो, रिकरिंग माने बार बार जेटा फिरे आसे। ओके काफी बार घूम के जो आता है उसको रिकरिंग कहते हैं। तो रिकरेंस, ओके रिकरेंस का टाइम या आपका दवाई का असर बंद होते ही शुरू हो जाता है, ठीक, ये सब आपको देखना है। उसके वजह से आप क्या ठीक कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि उसको दवाई कितना डोज का देना है, कितना इंटरवल में देना है। दिन में बीडी मतलब दिन में 2 बार बीडी दोगे या ओडी दोगे या टीडीएस माने दिन में 3 बार, ठीक है, ऐसे दोगे या एक दिन ऑल्टरनेट करके दोगे, ऐसे दोगे या एसओएस मतलब जब जरूरत हो तब खाना है। तो वो दवाई कैसे दोगे वो रिकरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। रिकरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो दवाई का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे सब आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पूछना पड़ता है, ठीक। सो नाउ एंड रिलीफ विद मेडिकेशन, आप मेडिकेशन लिए हो तो बोला। एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, सपोज उसका ओके एब्डोमिनल पेन हुआ, क्रैम्प हुआ, उस तरह का अलग लगा है, उसके साथ आपका एसोसिएटेड कुछ हो रहा है, फाटिगो हुआ था कि उसको कोई बोले कि 3 दिन पहले मैं गिर गया था, कैसे गिरे, ओके हाउ डिड यू फॉल, एंड इवन इफ यू फेल did you have any associated symptoms like any convulsion, any problem, okay blurring of speech, any sudden blank of the head, okay ऐसे करके आपको पूछना है। अगर ये सब है तो हो सकता है स्ट्रोक भी हो जाए, ठीक। तो ये सब के लिए आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको पूछना है। सपोज उसका पेट में दर्द होता है, उसके साथ उसको नॉसिएटिंग फील क्यों नहीं होता है, ओके नॉसिएटिंग फील होता है क्या नहीं, आपको ऐसे मैं आपको पूछ रहा हूँ टू गिव द एग्जांपल, बट व्हेन यू विल बी आस्किंग द पेशेंट यू डोंट आस्क देम दिस पॉइंटेड क्वेश्चंस, ये होता है क्या नहीं ऐसे नहीं पूछना है, आपको डायरेक्ट उनके ऊपर छोड़ देना है, लेट देम टॉक, ओके उनको जो मन में है उनको बताने दो, दैट्स योर जॉब टू लिसन टू देम एंड ट्रीट। सो आपको ऐसे पूछना है कि आर किचू हाँ ऐसा थे और कुछ साथ में होता है, ठीक है, वो खुद से बता देगा 3-4, अगर कुछ नहीं होता है तो बोलेगा कुछ नहीं होता है सर सिर्फ यही होता है, ठीक। तो ऐसे करके आपको हिस्ट्री देना है तो आपको पता चल जाएगा कि ओके दैट डिजीज इज लाइक दैट। नाउ हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट इलनेस मींस हो सकता है द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मतलब और आइदर ही हैज सफर्ड फ्रॉम इट लॉन्ग टाइम एगो लाइक 6 महीना 7 महीना पहले, ओके एब्डोमिनल पेन तो 7-8 माह से 3-4 माह से होते ही पड़े, okay now it will be depending upon the disease, the periodicity is how much important or not, okay fever अगर 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार 2 बार आ रहा है तो that indicates definitely some infection, okay but fever अगर 7-8 महीने 9 महीने के बाद 1 बार आया है that's pretty common, okay similarly एब्डोमिनल पेन या लूज मोशन ये अगर आपका 3 हफ्ता 4 हफ्ता में 1-2 बार हुआ वो फिर भी थोड़ा ही नॉर्मल आप देख सकते हो, लेकिन अगर 2-3 दिन में होता है, रिकरेंस हो रहा है वो डिसीज का तो दिक्कत है। तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये पहले बार आपका हुआ है, लास्ट टाइम ये सिमिलर डिजीज कब हुआ था, ठीक, उस टाइम आप मेडिकेशन लिए थे, अगर लिए थे तो हल हुआ था, अगर हल हुआ था तो वो मेडिकेशन वापस क्यों नहीं लिए। आपको अच्छे से जानना है कि if the patient was actually treated with some medication then why didn't he take it this time, या वो लिया था उसका सही नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। सो एवरी पॉसिबिलिटी यू हैव टू आस्क लाइक दैट, ओके जितना हो सके इन्वेस्टिगेटिव माइंड की तरह पूछना है। तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में ये तो पहला इस डिजीज का हुआ, उसके साथ आपका वो पूछना है कि ओके डिड द पेशेंट सफर फ्रॉम एनी अदर सिग्निफिकेंट डिजीज इन द पास्ट, कभी लोग हो सकता है कि किस दवाई का ओके पहले मेरा एज्मा था जैसे, तो मुझे इसमें लिखना पड़ेगा कि मेरा पहला एज्मा था, ओके या इसमें भी लिखना पड़ सकता है। ये कुछ पॉइंट्स ओवरलैपिंग है, ठीक, कुछ पास्ट इलनेस के हम लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। एनी हाउ
काफी लोगों को पहले हुआ था, काफी लोगों को पहले टीबी था, शायद वो पहले दवाई खाए हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको टीबी था, वो अभी पूरा कंप्लीटेड है, उसका दवाई रेजिमेंट उसका पूरा कंप्लीटेड है, लेकिन आप अगर मिस कर गए तो वो नहीं बोलेगा पहले कुछ इंपॉर्टेंट कुछ था। ओके, पिछला बार कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था। एनी इंपॉर्टेंट प्रीवियस इलनेस व्हिच इज सिग्निफिकेंट। ओके, ये आपको हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में नोट करना है। एंड ऑल्सो ये प्रेजेंट डिजीज के साथ पास्ट का कुछ रिलेशन आपको पता करना है, अगर है तो लिखना है, ठीक। क्योंकि आपको नोट करना पड़ेगा कि कौन सा दवाई उस टाइम खाए थे, तो आपको एसेस कर सकते हो ना कि ओके, सो दिस मेडिकेशन वाज ट्रीटिंग द पेशेंट, सो व्हाई इजंट इट वर्किंग नाउ, एंड इफ इट्स वर्किंग देन व्हाई डिडंट यू टेक इट। तो आपको ट्रीटमेंट करने में भी आसानी होगी, राइट। तो ऐसे करके आपको पूछना है। नेक्स्ट, मेडिसिनल एंड ड्रग हिस्ट्री। Medicinal and drug history means, okay, so here one term is very important, that is called comorbidity. CO, so morbid मतलब death, okay, related to death. Okay, morbid scenario means a scenario which makes you dead. So comorbidity means something which will not kill you directly, but which will slowly kill you associated with other things, just like diabetes. Diabetes will not kill you on its own, but diabetes will slowly but surely cause bacterial infection in your body, because sugar is very important factor for attracting bacteria and other infections. उसके साथ साथ शुगर आपका क्या कर देगा, सबसे पहले आपका ऊपर से नीचे और डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा, उसके पहले क्या होगा, नेफ्रोपैथी होगा, उसके पहले क्या होगा, डायबिटिक फुट। ओके, फिर गैंग्रीन हो जाएगा, निकल जाएगा अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ तो वो डायबिटीज के वजह से ही मरे, लेकिन डायबिटीज के लिए नहीं मरे। ओके, वो और ऑर्गन में इफेक्ट कर गया। सिमिलरली लाइक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से कोई मरता नहीं है, लेकिन उसके वजह से आपको स्ट्रोक आ जाएगा, योर वेसल विल टियर एंड स्ट्रोक आ जाएगा, फिर आप मर जाओगे। तो इसीलिए दिस थिंग्स आर कॉल्ड कोमॉर्बिडिटी। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस लाइक एस्मा, ডাইরেক্ট অ্যাজমাতে কেউ মরে না, বাট অ্যাজমার জন্য তোমার যে কন্টিনিউ SpO2 লেভেল কমে যাচ্ছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে, সো দ্যাট ডিক্রিজিং অক্সিজেন স্যাচুরেশন কন্টিনিউয়াসলি ইন ইউর বডি উইল provide your body will be not be able to provide your cells with the adequate oxygen, and slowly but surely you will face various problems, you may have to put into ventilator, okay, or artificial methods অনেকে। তো इसमें क्या क्या नोट करना है, आप सबसे पहले তুমি আমাকে একটু বলো, তুমি, হ্যাঁ ওই যে যে পাশে তাকালো, হ্যাঁ তুমি, না না ওই যে ওই মেয়েটা, তুমি মেয়ে, বসো, এই তো এই মেয়েটা। आप लड़की हो, মেয়ে মানে বোঝো, फिर खड़े हो, দাঁড়াও, ক্লাস দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। হ্যাঁ, কি হয়েছে বলো আমাকে, दो तीन डिजीज का नाम बताओ जो आप आसपास में लोगों को कंटिन्यूअसली दवाई लेते देखे हो। मैं नॉर्मली खड़ा करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का मन नहीं करता है, इसलिए मैं खड़ा करता हूँ ताकि उसको समझ में आए कि उसको ही बताए। कल तक तो किसी को खड़ा नहीं करना पड़ा। टाइफाइड निमोनिया का रोज दवाई कौन खाता है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हो गया है आपका। এই তুমি বলো, কোন ওষুধ রেগুলারলি খায় গো আশেপাশে? ভেরি গুড। আর বলে দিলাম যে একটু আগে ডায়াবেটিস, আর অনেকে ইনহেলার নেয়, অ্যাজমা, থাইরয়েড মোস্ট কমন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন। বসো, ভালো বলেছো। তো এরকম কমন সেন্স আশেপাশে দেখবে, একটু খেয়াল রাখবে, ঠিক আছে? थोड़ा ख्याल रखना आसपास का, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज आपका मेडिसिनल एंड ड्रग हिस्ट्री में लिखना ही पड़ेगा। अगर थायराइड का दवाई लेता है तो थायरोक्सिन या एल्ट्रोक्सिन कितना 50-50 वो दवाई आपको लिखना है कि क्या लेते हो, ठीक। तो आप नोट करोगे कि उसका ये भी एक डिसऑर्डर है, तो फर्दर आप कोई दवाई अगर दे रहे हो तो आपको दिमाग में रहेगा तो इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको कुछ दवाई। जब फार्माकोलॉजी आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि काफी दवा का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है, काफी टाइम में कुछ दवाई हम नहीं दे सकते अगर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक डिजीज, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लाइक वन एग्जांपल, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस लाइक एस्मा एंड ऑल, उनको हम ज्यादा डाइक्लोफेनाक नहीं देते हैं, ठीक। अगर पेन किलर्स डाइक्लोफेनाक नहीं देते, उनको हम आइदर पैरासीटामोल देंगे या आइबुप्रोफेन देंगे, ठीक है, ब्रूफेन 400 बोले पावा जाए, उसको हम डाइक्लोफेनाक नहीं देते, बिकॉज डाइक्लोफेनाक एक्चुअली प्रेसिपिटेट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ঠিক আছে। তো এরকম আছে, তোমরা ফার্মাकोलॉजी এগুলো সব পড়বে, ফার্মাकोलॉजी এগুলো সব আছে, बट ऐसे करके आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब शायद 10 लोगों में से 20 लोगों में से एक लोगों को नहीं होगा, एक लोगों को होगा, लेकिन जिसका होगा उसका अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर
फिर तुम्हारे ऊपर वो आएगा कि आप सही से पूछे ही नहीं, ठीक। तो मेडिसिनल ड्रग हिस्ट्री में ये सब, जो कुछ दवाई वो कंटिन्यूअस लेते थे या कुछ दवाई हम सिग्निफिकेंट टाइम के लिए लेते थे, जैसे टीबी का दवाई 9 महीना चलता है, कभी कभार 6 महीना चलता है, तो वो भी आपको लिखना है। कुछ सिग्निफिकेंट डिजीज के लिए दवाई खाता था क्या नहीं, ठीक है। जब बचपन में मेरा इनहेलर चलता था, तो अभी नहीं चलता है, काफी दिन हो गया है, लेकिन मुझे लिखना है इधर, 10 साल हो गया है मुझे नहीं है, लेकिन व्हेन आई विल बी गोइंग टू द डॉक्टर, मुझे इधर पे लिखना है, बोलना है कि सर मेरा ये भी था, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि इसका एक टेंडेंसी, क्योंकि आई हैव मोर टेंडेंसी to have respiratory diseases rather than normal person because I have a history of asthma। এরকম সবার ক্ষেত্রে এরকম আছে। ওকে, মেডিসিনাল एंड ड्रग हिस्ट्री। उसके बाद तुम्हारा पहले कोई कुछ ओटी हुआ था, कुछ हुआ था, कोई दवाई कंटिन्यू खाने को बोला है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू आस्क हियर कि आर यू यू नो सिंस दीज आर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, यू हैव टू आस्क द पेशेंट अबाउट वो क्या डॉक्टर का परमिशन ले रहा है, वो क्या 3 महीने 4 महीने पहले गया था लास्ट, या 4 साल पहले गया था। हाँ, कोई लोग होता है डॉक्टर ने दिखा के खाते रहते नो, ऐसे करने से होगा नहीं। उनको तो रेगुलर मॉडरेट करना है वो दवाई को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। उसके लिए एटलीस्ट 2-3 महीने में 4 महीने में एक बार डॉक्टर दिखाना है, वही डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो दवाई मॉडिफाई कर सके, बिकॉज ही विल हैव हिज हिस्ट्री। वो तो पूरा नहीं है तारपड़ी तो शुद्ध देवे। ओके, तो पहली बार जब आप देखोगे ये सब आपको लेना पड़ेगा। नाउ इफ द पेशेंट बिकम्स ए फॉलो अप पेशेंट, देन आपको उतना कुछ करना है नहीं, पता है, क्योंकि आपको तो आधा चीज लिखा हुआ है, आपको बस अपडेट लेना है, दवाई देना है, ऐसे ही चेम्बर चलता है, ठीक। तो आपको पूछना है कि ये पहली बार जब ये दवाई लिए थे, whom did you ask for it, okay, who told you to, you know। कई लोग बोलता है कि নিজের থেকেই খাচ্ছি, হ্যাঁ আমার বিপি বেশি থাকতো নিজের থেকে অ্যাম্বলো 5 খাচ্ছি। সো এরকম অনেকেই আছে, প্রচুর লোক আছে নিজের থেকে ইউনো হচ্ছে গিয়ে প্যান্টোপ্রাজল লাইক প্যান40 লোকে এমনি খেতে থাকে, ঠিক আছে। তো এরকম কোনো মানে নেই, ওগুলো খেলে আরো প্রবলেম হয়ে যাবে, পরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেলে তখন প্যান্টোপ্রাজল গ্রুপ অনেক জায়গায় কাজ করছে না, ঠিক আছে। এখন আর তার জন্য এখন ওমেপ্রাজল ওইগুলো দিচ্ছে, বিকজ প্যান্টোপ্রাজল অনেক জায়গায় আর কাজই করছে না অনেকের উপরে, এত খেয়েছে উইদাউট এনি ইয়ে। যাই হোক, তো এইসবগুলো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আচ্ছা সে पूछना है, ঠিক। নেক্সট মেডিসিনের ব্যাপারে জেনে নিয়েছি, তো আমরা সার্জারির ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করব। সো উইল বি আস্কিং অ্যাবাউট এনি প্রিভিয়াস সার্জারি, ওকে, এনি প্রিভিয়াস সার্জারি অফ দ্য পেশেন্ট। অনেকের হয় অর্থোপেডিক অপারেশন হয়, অনেকের প্লেট বসানো থাকে, এ লট অফ পিপল হ্যাভ প্লেটস, ইউ নো, प्लेट्स एंड स्क्रूज एंड ऑल, वो फिक्स इंटरनल रोटेशन, ओके, एक्सटर्नल रोटेशन एंड फिक्सेशन वो सब करते हैं, ओके, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन वो सब करते हैं। तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, वो तो बाहर से दिख नहीं सकते। कोई हैव पेसमेकर, वो भी एक सर्जिकल हिस्ट्री में रहेगा, he has this moment। so any pacemaker, anything implant, any implant, okay, metallic implant, pacemaker implant, any kind of implant if the patient has, कई लोगों को इधर पे क्या रहता है, स्टेंट बैठा रहता है बाईपास सर्जरी में, कार्डियक बाईपास सर्जरी में, ओके। सो वो सब आपको पूछना है डिटेल में सर्जिकल हिस्ट्री में। लड़कियों को स्पेसिफिकली पूछना है सर्जरी के बारे में, क्योंकि ए लॉट ऑफ वुमेन डोंट नॉर्मली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडुकेटेड वुमेन, और इंडिया में आपको जितना पेशेंट मिलेगा उसमें से उतना एडुकेटेड आपको एवरेज 50-50 मिलेगा, ठीक है। तो काफी लोग क्या करते हैं, दे विल बी, you know, even their husbands and them, both of them, they will not know that cesarean section is an operation। वो सोचता है बच्चा निकलता है, तो वो तो NVD is not as operation, NVD is not an OT, उसके लिए आपका एनेस्थेसिया नहीं लगता है, कोई OT सेटअप नहीं लगता है, तो that is not an OT, that's इसलिए this is called normal vaginal delivery। but whenever C section comes, cesarean section, that's actually a OT। तो आपको पूछना है, कई अम्मियों ने अपने बच्चों को सी सेक्शन करवाया है, लेकिन वो सी सेक्शन को एक ओटी नहीं मानती है, तो आपको पूछना है, कोई लड़की होगा पूछ ही लेना है कि तुम्हारा सी सेक्शन हो नहीं तो। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री। अब एनी काइंड ऑफ सर्जिकल हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, वो ईआर ऑपरेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिपेयर, एनीथिंग सर्जिकल, आपका ऊपर छुरी कैंची चलाया गया है, आपको नोट करना है पेशेंट को पूछ के, ठीक। फैमिली हिस्ट्री, वो छोटा सा स्टीच भी छोड़ के थोड़ा ऊपर लेवल का। नेक्स्ट, फैमिली एंड डिजीज हिस्ट्री, फैमिली एंड फैमिली डिजीज हिस्ट्री। Why is it important? Because a lot of diseases can transcend from family member to family members. Best example, thalassemia, and also communicable diseases like hepatitis। काफी देर रहेगा। एंड ऑल्सो ए लॉट ऑफ पीपल हैव टेंडेंसी, बाबा मार डायबिटीज আছে তো বাচ্চা ডায়াবেটিক প্রোন হতে পারে। এ লট অফ ডিজিজেস transcend from father and mother to their children।
और कभी कभार ये फादर मदर को बाईपास करके वो डायरेक्ट आपका दादा या नानी से भी आ सकती है, कभी कभार बाईपास करती है, बिकॉज इट जेनेटिक, आपको जैसा जीना है वैसा आ जाएगा। तो आपको पूछना है कि नॉन रिलेटिव के में उतना कुछ है क्या नहीं, ठीक है। तो पहले फैमिली डिजीज हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द फैमिली। फैमिली मतलब कौन कौन है फैमिली में, कितना लोग है, हाउ मेनी पीपल डू यू लिव इन योर हाउस, ऐसे करके एक छोटा सा फैमिली हिस्ट्री एंड फैमिली डिजीज हिस्ट्री आपको लेना है। कोई फैमिली का सिग्निफिकेंट कोई कोई डिजीज का लिए कुछ खाता है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली में इधर आ गया, तो in case of women you have to take one extra history according to family, that is gestational history. What is gestational history? Gestation means pregnancy. So इसमें क्या क्या पूछना है, तो मैंने ऐसे करके लिखा था 2 दिन ही ऐसे करके, पहले उसको कितना बच्चा है, ठीक है फिलहाल, फिर कितना बार प्रेग्नेंट हुआ था, ओके। अगर वो मैच कर गया मतलब जितना पैदा हुए थे उतना ही जिंदा है, ठीक। अगर मैच नहीं करा मतलब मर गया है, ये अडॉप्ट किया है किसी को एक्स्ट्रा, तो ये आपको नोट करना है। सेकंड, थर्ड इज कितना बार हुआ अबॉर्शन करा चुके हैं, मतलब हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट प्रेग्नेंट एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड यू एक्चुअली गिव बर्थ टू ए बेबी, तो ये आपको अलग करना है, ओके। एंड फाइनली आपको थोड़ा डिटेल लेना है कि जो जो बच्चा हुआ था उसका एनवीडी हुआ था या सी सेक्शन हुआ था, कितना बच्चे का क्या हुआ था, उसका एज कितना है, लड़का लड़की कितना है, एंड ऑल्सो आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि उसका जो दवाई लेने का, आप जो आई पिल वगैरह वो सब जो लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, वो कितना वो लेती थी या अभी एक्टिव एज में है तो अभी क्या लेती है क्या नहीं, ओके। यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा जेस्टेशनल हिस्ट्री में थोड़ा सा करके पूछ लेना है, बिकॉज ए लॉट ऑफ वुमेन दे कंटिन्यूअसली टेक ये एंटी प्रेगनेंसी पिल्स which will be actually if not taken under proper supervision, वो आपको क्या कर देगा, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा। वो देखो पास में चार्ट टंगा हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 हार्मोन इधर उधर होता है, ठीक। तो उधर पे आप ऑटो रेगुलर दवाई खा के उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो नॉर्मल ही नहीं जाएगा, ठीक है। उसका जो नॉर्मल वो जो उठ रहा है, देखो वो पीक पे आ रहा है, एलएच पीक इन 14 डेज, देखो 14 नंबर दिन एलएच रेडा पीक আছে, तो ये सब और नहीं होगा, ये सब आगे पीछे हो जाता है अगर कंटिन्यूअसली, इसको कहते हैं ड्रग मिसमैनेजमेंट, ओके ओके। तो ऐसे करके वो काफी लोग अपने से करते हैं, तो ऐसे आपको थोड़ा पूछना है, ठीक है। एंड ऑल्सो जितना बचा हुआ है उसका मोड ऑफ डिलीवरी, कैसे करके डिलीवरी, तो आपको एक आइडिया चल जाएगा कि अम्मी का कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। एंड ऑल्सो ब्लड ग्रुपটাও এখানে জিজ্ঞেস করবে, ফ্যামিলির ব্লাড গ্রুপ, নিজের ব্লাড গ্রুপ, ফ্যামিলি মোটামুটি লাইক ওভারঅল যদি কোনো এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু থাকে, ওকে, সেইগুলো একটু নোট করবে। नेक्स्ट जेस्टेशनल हिस्ट्री हो गया, जेस्टेशनल के बाद आपको आ जाना है फैमिली हो गया, फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री भाई इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू टू एसेस अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ। अगर उसका न्यूट्रिशनल हिस्ट्री सही है, दैट मीन्स he or the she or the patient is patient family is taking proper food, proper nutrition, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने का चांसेस बहुत कम है, उनको विटामिन वगैरह ये सब वगैरह उतना कम होगा नहीं, ठीक। सो ऑलरेडी आपका काफी चीजें अच्छा हो जाएगा, अगर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री सही रहा तो काफी डिजीज वैसे नहीं होगा। एंड ऑल्सो द पर्सन हु आर फेड वेल दे हैव बिगर ग्रेटर इम्यूनिटी। सबाई जाने যখন আমরা না খেয়ে থাকি आवर इम्यूनिटी वीकेंस, ओके। इसलिए अस्पताल में जब काम करते हैं तो बोलता है ज्यादा देर तक थोड़ा थोड़ा खाया करो, स्पेसिफिकली इफ यू आर वर्किंग इन कम्युनिकेबल डिजीज वार्ड्स, ओके। तो ऐसे करके बोलता है क्योंकि आपका इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाता है, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग एनी फूड योर इम्यूनिटी बिकम्स वीक, ओके। सो एंड ये तो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री मतलब इसका खराब है तो लॉन्ग टाइम से ही हो रहा है, तो दे आर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड अदर थिंग्स, ओके। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री आपको लेना है, क्या खाते हो नॉर्मली, क्या करते हो, ओके। Socioeconomic status, nutritional history and socioeconomic status are two things which go hand by hand. Socioeconomic status अगर अच्छा होगा तो most probably उसका nutritional history भी अच्छा होगा। बट आजकल का दिन में 80,000 इनकम है लेकिन खाते क्या, चिप्स बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पिज्जा, स्टिक्स, लेकिन वो सब खाने से आपको क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस হবে। কিন্তু তার মানে কি और सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस इज वेरी गुड, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री इज एबोमिनेबल, तो वो सही करना पड़ेगा, ओके। एंड सम पीपल इवन इफ दे आर अर्निंग वेरी लेस, देयर फूड हैबिट इज नॉट बैड, वो बस चावल दाल खाते, सब्जी खाते, ठीक ठाक रह लेते हैं, वो लोग हट्टा कट्टा भी होते हैं। काफी लोग देखोगे जितना पैसा आ रहा है आदमी उतना मोटा हो रहा है खा के,
तो ये पहले रिलेटेड था, अभी तो कुछ उल्टा ही चल रहा है सोसाइटी में, तो और भी अच्छे से पूछना है। डोंट एज्यूम कि वो अच्छे से इनकम करते हैं मतलब खाता भी अच्छा होगा, नहीं, वो अच्छे से इनकम करते हैं मतलब उसके पास बर्गर पिज्जा आने का चांस ज्यादा है, ठीक। तो ये पूछना है। आप लोग भी तो करते हो, तो ছেলেরা আসে ওখানে অর্ডার নিয়ে, যদিও এখানে অত রেস্টুরেন্ট নেই বলে সুবিধা, এটাই কলকাতায় কোনো কলেজ হলে বুঝতে পারতে, সারাক্ষণই আসতো। যাই হোক, আমিও কত খেয়েছি, বিরিয়ানি উড়িয়েছি। এনি হাউ, addiction history, addiction. So there are few kinds of addiction. First এই যে যেটা বললাম, ফাস্ট ফুড, টি, কফি, পান মানে বিটল, ওকে, these are harmless, relatively harmless. You can control them. They are not recurrent addiction, like आपको एक बार लेना है तो अगले बार लेना ही है, ऐसा करके नहीं है. Then there are moderate kind of addiction which will make you go into those areas. সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল, marijuana, सिगरेट, सिगरेट नहीं कहोगे, सिगरेट बीड़ी ये सब, एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग डिज, ओके, इन तो उसको क्या कहते हैं, उसको भेप, वो सब कोई करता है तो वो सेकंड लाइन है। एंड थर्ड लाइन इज प्रॉपर ड्रग्स लाइक marijuana, ketamine, marijuana তো এখানে বলে দিলাম, ketamine, heroin, তারপরে হচ্ছে কোকেন, ওকে। तो ये सब गुलो तुम्हार एडिक्शन हिस्ट्री হবে। ऑल एंड सो आईवी ड्रग्स, आईवी अगर लेता है तो उसको काफी दिक्कत हो सकते। তুমি বলো, হ্যাঁ তুমি দাঁড়াও, ওই তো যে মেয়েটা আমার দিকে দাঁড়িয়ে লাল সোয়েটার পরে, হ্যাঁ, তুমি বলো যে যারা আইভি ড্রাগ নেয় ওদের কি রোগ হওয়ার চান্স বেশি থাকে, একটু আইডিয়া লাগিয়ে বলো। এই বলো, তুমি পারবে। হুম হুম, very good. Communicable disease, বসো বসো। Communicable disease, specifically blood-borne communicable diseases, because they share in needles, okay, okay, तो दे शेयर नीडल्स, अगर नीडल शेयर नहीं करोगे तो आपका खुद का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जितना ड्रग के वजह से हो सके, आपको विथड्रॉल हो सकता है, उसके रिएक्शन केमिकल हो सकता है, बट कम्युनिकेबल डिजीज यू विल ओनली गेट इफ यू शेयर द नीडल विद अदर पर्सन, ओके, दिस पर्सन आर वेरी प्रोन टू, ओके, कम्युनिकेबल डिजीजेस। लगभग 10 आदमी जो वो आईवी ड्रग करता है उनमें से 7 लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज होता ही है। हेपेटाइटिस से शुरू होता है, HIV होकर खत्म होता है। आई नो बिकॉज आई वर्कड इन like infectious disease department for 1.5 years तो I know these things। हम सामने देखे काफी बच्चा बच्चा लड़का 13 साल 14 साल 16 18 साल, they have only fevers to live, not even fevers, few months to live। बाबा माँ बाड़ीते नहीं, घर पे मम्मी पापा नहीं रहते हैं, उसका माँ बाहर काम करता है, पढ़ाई का पैसा नहीं था, तो उसका जो लोकेलिटी था उसका कोई वो जो होता है वो थोड़ा सीनियर लड़का जो लोग है उनके साथ में वो सब चलता फिरता है, वो लोग उनको करवाया दिया है, उसको लत लग गया, लेकिन उसको उतना पता नहीं था, बच्चा है, तो लाइक 2 साल के अंदर, 2 साल नहीं, लाइक 1.5 साल 1 साल के अंदर उसको हेपेटाइटिस हो गया, फिर उसके साथ HIV आ गया, हो गया उसका 19 साल में उसका, मतलब দেখলে কি দেখো খারাপ লাগে, বাট কি করবে বলো, মানে সবাই মানে फ्रस्ट्रेशने करो, তোমাকে द मेन जॉब ऑफ ए डॉक्टर इज नॉट टू जज यू, वो ले सकता है ड्रग्स बट आपको उनको साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करना है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड साइकियाट्री। সাইকোলজি, সাইকোলজিস্টের কাছেও যেতে পারো, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও যেতে পারো। সো ইউ ওখানে সাইকিয়াট্রিস্ট যদি জাজ করে এই তুমি নেশা করো বেরো এখান থেকে, তাহলে তো চিকিৎসাই হবে না। নট অনলি ফিজিক্যাল বাট দ্য মেন্টাল হেলথ অলসো, মেন্টালের ব্যাপারে এখানে বেশ কিছু আছে, আমরা ডিসকাস করব, ওকে। সো आपको জাজ नहीं करना है, आपको समझाना है कि देखो बाबू এগুলো ঠিক না, তুমি এগুলো করবে না, এরকম ভালো করে বোঝাতে হবে। অ্যাডিকশন হিস্ট্রি হলো, জেস্টেশনাল হিস্ট্রি বলে দিলাম, ফাইনাল মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে, তাই এটা লাস্টে লিখেছি। মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিতে কি কি জিজ্ঞেস করবে বলো তো, তুমি তুমি গুড, মোটামুটি বলেছো। নাও উইল বি ডিসকাসিং হোয়াট হি সেড ইন ডিটেলস। ফার্স্ট রেগুলার হচ্ছে কিনা, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রেগুলার, সেম পিরিয়ডিসিটি, ওকে। সো it can be regularly regular or irregularly irregular, let me make you understand। regularly regular মানে ওকে কোনো মাসে 15, কোনো মাসে 21, কোনো মাসে 22, ওকে, বাট irregularly regular মানে 15 হচ্ছে প্রত্যেক মাসে, তো ওটা ইরেগুলার, বাট এভরি ডে দ্য পিরিয়ড ইজ ফর 15 months, সরি 15 days, তো খুব প্রবলেম হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ
ভেরি অ্যাবনর্মাল, রাইট? সো এরকম প্রবলেম হতে পারে। সো দু রকম প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে। ফার্স্ট, আর আবার একবার এরকমও হতে পারে যে কোনো ঠিকই নেই, কোনো মাসে 15, कई मंथ में 7 days, कई मंथ में 26, कई मंथ में 25, ऐसे करके। तो आइडियली नॉर्मल रेंज কত হয় 28 থেকে 30 দিন +-2, প্লাস 26 দিনে অনেকের হয় 25, 26, 27 থেকে मोटामोटी ओके ही धरे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि हर महीना ऐसा हो रहा है क्या नहीं, ठीक है, फर्स्ट। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कई महीना बहुत कम हो रहा है क्या नहीं, कई महीना बहुत ज्यादा हो गया, वो भी दिक्कत है। तो पीरियोडिसिटी आपको फर्स्ट एसेस करना पड़ेगा। आफ्टर वो पीरियोडिसिटी एसेस किए, फिर आपको देखना पड़ेगा कितना दिन का साइकिल है, ठीक। পিরিয়ড ও বলা স্যার প্রত্যেক মাসে সমান ডিস্টেন্সেই হয়, দ্য ডিস্টেন্স অফ মাই पीरियड आर सेम, बट यू गॉट टू नो कि उसका लाइक 21 दिन बाद होता है, तो थोड़ा तो चिंता का बात है, ठीक। या उसका 35 दिन 35 डेज बाद होता है, तो तब चिंता पर, भले ही वो रेगुलर हो लेकिन वो दिक्कत तो है, लेकिन उतना दिन तो नॉर्मल है नहीं, ठीक। उतना दिन आपका नॉर्मल साइकिल तो उतना नहीं लग सकता, तो उसका वो साइकिल घटने में उतना देर क्यों लग रहा है, दैट मीन्स निश्चय कोनो हार्मोनल इम्बैलेंस আছে, है ना, ना होले तो हर कथा नय। सो ऐसे करके आपको थोड़ा जज करना है, इसीलिए ऐसे पूछते हैं। तो फर्स्ट वो पूछो। सेकंड आप क्या पूछोगे, जेटा बोल लो ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, अब ब्लीडिंग के बारे में थोड़ा डिटेल लेना है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज ओके। नाउ एब्सोल्युटली नो ब्लीडिंग इफ हैपेंस देन दैट इज आल्सो एबनॉर्मल। कई बोले एमिनोरिया, राइट, दैट इज ए डिजीज। अगर ब्लीडिंग ही नहीं हुआ तो आपका बॉडी प्रिपेयर ही नहीं होगा फॉर द नेक्स्ट ओवुलेशन, বাচ্চা হবে না, বাচ্চা ইনফার্টিলিটি হওয়ার খুব বেশি চান্স থাকবে যাদের অ্যামেনোরিয়া থাকে, দেখবে এটা ফিজিওলজিতে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে আছে। এনিহাউ আমরা যখন পড়বো आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट, बट फॉर नाउ आपको पूछना है कि उसका ब्लीडिंग अमाउंट कितना है, इज इट नॉर्मल, इज इट वेरी लेस, इज इट वेरी मच। वेरी मच होगा तो मतलब और कोई इंजरी हो सकता है, कोई सिस्ट वगैरह कुछ हो सकता है, तो आपको ब्लीडिंग का अमाउंट पूछना है। नेक्स्ट आपको पूछना है ब्लीडिंग होते वक्त कोई कलर ऑफ द ब्लीड, ओके, इज इट नॉर्मल रेड जैसा होता है, या उसका कोई ब्लैकिश आ रहा है, मतलब ब्लैकिश आ रहा है मतलब कुछ क्लॉट वगैरह होगा, पुराना क्लॉट ब्लैकिश हो जाता है। टिपिकल एग्जांपल यू विल गेट इन गैस्ट्राइटिस, आपको ब्लैक स्टूल হয়, দেখবে বইতে লেখা আছে। व्हाई? बिकॉज द ब्लड क्लॉट्स इन योर, এখানে ব্লিডিং হচ্ছে, দেন পুরা গার্ড में वो पूरा जब जाता है ना, जाते जाते ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो ब्लैकिश हो जाता है, ঠিক, ওই জন্য ব্ল্যাক স্টুল। আর এগুলো তোমাকে এখানে আরেকটু পরে মানে নেক্সট সেমিস্টার या फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यू नो ब्लड इन स्टूल। अब ब्लड का अगर कलर आपका एकदम पूरा रेड आया, व्हाट इज दैट मीन्स द इंजरी इज नॉट दैट मच डीपर इनसाइड योर गट, তার মানে ওই ইনজুরিটা কোলনে বা রেকটামে আশেপাশে আছে, রাইট, তাই জন্যই ব্লাড ক্লট করতে পারেনি। ইউ আর গেটিং দ্য লাইট রেড কালার, নর্মাল কালার, বিকজ দ্য ব্লাড হ্যাজ নট ক্লট। এখন না স্টমাক থেকে কোনো ব্লাড আসছে, তো ক্লট হয়েই যাবে। সো ওইভাবে ব্লাডের কালার দেখে অ্যাসেস করা যায় দ্য ইনজুরি ইজ সাপোজেডলি হোয়ার। তারপর তো তুমি ওকে रेडियोलॉजी করতেই দেবে, यूएसजी করতে দেবে, এগুলো তো দেবে, তাই না। বাট ऐसे करके आप पहले समझ सकते हो कि कहाँ क्या हुआ है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल कलर या व्हाइटिश डिस्चार्ज कोई है क्या नहीं। व्हाइटिश डिस्चार्ज होगा तो मैक्सिमाम वुमेन আমাদের দেশে ভেরি প্রোন টু ক্যান্ডিডিয়াসিস, তো ওখানে হতে পারে, সেটা দেখবে व्हाइटिश डिस्चार्ज কিছু আছে কিনা। सो दैट इज द कलर। नेक्स्ट क्लॉट, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट, छोटा मोटा क्लॉट, कभी कभार छोटा क्लॉट रहता है लेकिन एक या दो ही रहता है, ओके। अगर आप देखोगे काफी चंक या चंक क्लॉट निकल रहा है, दैट मीन्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, आपको डॉक्टर दिखाना ही है, ठीक है। तो ज्यादा क्लॉट रहना बहुत दिक्कत बारे, डॉक्टर दिखाना है। तो ये हो गया आपका, सिर्फ ब्लड का ही इतना कुछ आपको एसेस करना है, ठीक। उसके बाद आपका एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड पेन आएगा। पेन थोड़ा बहुत होना नॉर्मल है, बट बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मे बी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम यू नो एनी काइंड ऑफ फाइब्रॉइड यूटेरस, एनी काइंड ऑफ सिस्ट में भी प्रेजेंट, সেই জন্য हो तो पेन होচ্ছে, ठीक। तो ऐसे करके आपको पूछना है, ये सब आपको एसेस कर लिए। अब एंड फाइनली जो मुझे पहले बोलना चाहिए था, दैट इज द टाइम। और पॉइंट गुलो আমি এক্সপ্লেন করছিলাম বলে এটা পরে বললাম, বাট ये पहले सबसे पहले ये यही पूछना है, मतलब पीरियोडिसिटी के आसपास ये पूछना है हाउ मेनी डेज डू यू ब्लीड फॉर। ওটা যদি ज्यादा 7-8 डेज हो रहा है दिक्कत है, 1-2 दिन भी दिक्कत बढ़े, नॉर्मल কত হয় 3 to 5। तो इतना कुछ आपको अच्छे से पूछना है, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन अगर ठीक से नहीं हुआ ना तो बच्चा होना प्रॉब्लम हो सकता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमंस, এখন হিউম্যানসদের আর মানে वैसा कोई पर्पस है नहीं, लेकिन पहले सदियों तक ह्यूमंस का एक ही मकसद था, सारा एनिमल्स का एक ही मकसद। क्या मकसद होता है पृथ्वी पे आसार? टू लीव एन ऑफस्प्रिंग, टू क्रिएट योर
legacy and to move your DNA forward. That is the main fund. इसलिए ही तो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो बचेगा वही डीएनए को आगे लेके जाएगा. वीक डीएनए गेट आउट, बिकॉज इफ एनीथिंग कम्स यू कैन नॉट सर्वाइव. देखबे বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চাদের মধ্যে দেখবি ये जो बच्चे छोटा छोटा बच्चा, इनमें से ज्यादातर नहीं बचेगा. कोई जिन लोग वीक है वो लोग ऑटोमेटिकली खाना नहीं खाएगा. जो लोग स्ट्रांग है वो खा लेगा. ह्यूमंस we are actually we are not savages anymore. Okay, we are civilized. So আমরা যারা উইক হয় তাদেরকে এক্সট্রা কেয়ার দিই, বাট ইন অল আদার এরিয়াস they actually kill the weak. হিউম্যানদের মধ্যে এরকম করার চেষ্টা করেছিল নাজিরা আর আমেরিকানরা, খুব প্রবলেম হয়ে গেছিল. তো সিভিলাইজড পিপল ডোন্ট ডু দ্যাট. বাট দ্য মেইন থিং ইজ, এখন কারো যদি অফ স্ক্রিন উইক হয় সে কি করবে বলো? তাকে ঠিক করার চেষ্টা করবে. তো যাই হোক, হিউম্যানরা সিভিলাইজড বলে আমরা একটু সিভিলাইজড ম্যানারে চলি. বাট দ্য মেইন थिंग इज क्रिएटिंग एन ऑफस्प्रिंग. इसमें प्रॉब्लम होगा तो ऑफस्प्रिंग क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि मर्द बच्चा नहीं कर सकते, लड़कियों को ही पालना है. तो लड़कियों में अगर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है तो लाइक प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. एंड वो लड़की को भी तो खराब लगेगा ही. तो वो आपको सही से एसेस करना है, सही करना है. नॉर्मली की टेस्ट होता है बीटा एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और उसके पहले रेडियोलॉजिकल टेस्ट एक दिया जाता है कि यूएसजी कराओ. यूएसजी एले पेल्विस माने लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस. उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी रहेगा तो आपको दिख जाएगी. कोई इकोजेनिसिटी तुम्हारे टर्म गुलो बुझते हो. इकोजेनिसिटी मतलब कोई कलर का चेंज होगा अगर ऐसा करके, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आप एसेस कर सकते हो. एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन विल बी गिविंग यू एन आइडिया अबाउट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से थोड़ा आइडिया दे देगा. एनी हाउ ये सब आपको बाद में पता ही चल जाएगा जब रिप्रोडक्टिव पढ़ोगे. फॉर इनफ. उसके बाद ये सब आपका बातें चल रही थी, तो यू आर नॉट टचिंग द पेशेंट. ओके, यू हैव जस्ट sat or stood whatever in front of the patient and you have asked these questions. Now you get to check the patient, touch the patient. টাচ করতে গেলে তোমাকে সবচেয়ে আগে ভাইটালস 5টা পয়েন্ট নিতে হবে. ये 5 पॉइंट मत भूलना. बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर एंड SpO2. 5 मोस्ट वाइटल पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये 5 में कुछ दिक्कत आ जाए तो पेशेंट को तभी डॉक्टर दिखाना है, और अगर ट्रीट नहीं हुआ तो मर जाएगा. ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज कत? सिस्टोलिक डायस्टोलिक এখন তোমরা বড় হয়ে গেছো, अब बड़े हो चुके हो, रेंज में बताना है. सिस्टोलिक का रेंज बताना है, डायस्टोलिक का रेंज बताना है. 1 to 20 was enough for class 10. कितना है? 100 to 140. 140 के ऊपर हो जाएगा तो प्री हाइपरटेंसिव होता है. एंड फाइनली डायस्टोलिक का कितना होता है? 60 to 90. 60 to 90. ठीक है. पल्स का नॉर्मल रेंज कितना होगा? ऐसे 60 to 90, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सरसाइज एट ऑल. का चल के आए हो क्या नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. 60 to 90 इज नॉर्मल रेंज. ओके. रेस्पिरेटरी रेट 12 to 16. 12 आफ्टर 5 minutes ऑफ प्रॉपर रेस्ट. ओके. 12 to 16. टेम्परेचर कितना नॉर्मल है? 98.4 Fahrenheit. एंड SpO2, ये दिस विल यू विल सी इन पल्मोनोलॉजी सिस्टम. SpO2 means saturation of oxygen. Oxygen saturation will be always more than 95. Always. 94, 93 हो गया, आपको मास्क चलाना है. तभी मास्क चलाना है एकदम. कोई आपको एक्सेप्शन नहीं चाहिए. आप सोचोगे एक ही दो कम नहीं, 94 होगा, ऑक्सीजन चलाना ही है. ठीक है. सो वो रेंज कम होगा, शायद 2 या 4 लीटर पर मिनट ऐसे चलाओगे वे. लेकिन अगर आपका 90 आ जाए तो वो स्पीड आपको ज्यादा करना पड़ेगा. 88 आ जाए तो 12 में चलाना पड़ेगा. अगर उसमें भी ना आए तो NRBM देना पड़ता है, नॉन रेस्पिरेटरी बैग मस्क. ठीक है. তুমি এত জানো কি করে? ভালোই বলছি, পড়েছো? या घर में कोई डॉक्टर है? घर पे डॉक्टर है, इसीलिए. राइट. सो तो इतना तो पढ़ नहीं सकोगे. इतना दिन में तो ये सब टर्म ही यूज नहीं होता है. शायद घर में बोलते सुने होंगे. हॉस्टल में देखा है? ओ, खुद का नर्सिंग होम है? पापा के साथ गए? बहुत बहुत अच्छा. इसीलिए एनीहाउ, तो ये सब हो गया आपका इम्पोर्टेंस. अब हम क्या करेंगे, ये सब करने के बाद उधर पे हम आपको बुलाएंगे. आपको ये तीनों मुझे नाप के देना है. पिछला 2 दिन भी लोग नापे हैं, आपको भी नाप के जाना है. नेक्स्ट पैलेर इक्टेरस. नेक्स्ट 10-12 पॉइंट है जो आपको रटना पड़ेगा, भूलना नहीं है. ठीक কি কি আছে? প্যালার ইকটেরাস, ক্লাবিং, সায়ানোসিস. এই চারটে একবারে উচ্চারণ করবে. ওকে. টেক দিস নেমস ইন ইওর সেম ব্রেথ.
पैलर, इक्टरस, क्लबिंग, साइनोसिस। पैलर मतलब क्या है? पेलनेस, एंड इट डिनोट्स एनीमिया। इक्टरस मतलब क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन। येलोइश डिस्कलरेशन, उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा? जॉन्डिस। क्लबिंग का मतलब क्या है? ইনক্রিজ ইন টিস্যু অফ পালস স্পেস। পালস স্পেসের টিস্যু বেড়ে যাচ্ছে, ওকে। তার মানে ওটাকে আমরা বলছি হাইপারপ্লাসিয়া। এই টার্মটা তোমরা প্যাথোলজিতে পড়বে, হাইপারপ্লাসিয়া বলে, ঠিক আছে। ওকে, অনেক হাইপারপ্লাসিয়া, মেটাপ্লাসিয়া মানে ক্যান্সারে যেমন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেল, ওইসব সব টার্মিনোলজি আছে, আপাতত যেমন হাইপারপ্লাসিয়া। নেক্সট সায়ানোসিস। সায়ান মানে ব্লু, সায়ানোসিস মানে ব্লুইশ ডিসকালারেশন। ব্লুইশ ডিসকালারেশন ইজ মোস্ট কমনলি noticed in your tip of the tongue, your lips, okay, and then your earlobes, and finally it will spread into your periphery like over your nail beds and over your লেগের যে নেল গুলো আছে, ওকে, ফুটের যে নেল গুলো আছে ওখানে আলটিমেটলি যাবে, ওগুলো অনেক পরে যায়, ওকে। সো দিস থিংস, সায়ানোসিস এর মেইন রিজন কি? लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि उसका ऑक्सीजन उधर नहीं जा रहा है तो वो नीला पड़ते जाएगा, ठीक। इक्टेरियस का रीजन तो जॉन्डिस। जॉन्डिस हम कहते हैं हेपाटाइटिस, उसको एक्चुअली हम कहेंगे हेपाटाइटिस। हेपाट मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। एनी इन्फ्लामेशन इन लीवर will be causing yellowish discoloration. कैनो? because liver is only responsible for that bilirubin, okay, metabolism। bilirubin सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इसलिए येलो bilirubin बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं जा पाएगा तो बॉडी में प्रेसिपिटेट होगा। ये सब हम पढ़ेंगे, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल में है, ठीक है, इस सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाएंगे। फिर क्लबिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ क्लबिंग आर जेनेटिक एंड स्मोकिंग, ओके। स्मोकिंग जेनेटिक भी हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकता है। एंड पैलेट, पैलेट का काफी रीजन है, आपको बुक में 10 रीजन ऐसे ही मिल जाएगा। ভিটামিন B12 মানে পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, পরপর বলতে থাকলে অনেকগুলো চলে আসবে, 5-6টা এমনি চলে আসবে। নেক্সট, এবারে আমরা সেকেন্ড লাইন অফ প্রবলেমে যাব, সোয়েলিং। তুমি বলো, বলো তো সোয়েলিং কি রকম হতে পারে? আচ্ছা ঠিক আছে, বসে পড়ো, তুমি বলো। কোন একটা জায়গায় ফুলে গেছে, কেন ফুলতে পারে? কি ধরনের ফোলা থাকতে পারে? তুমি আশেপাশে লোকের কি ধরনের ফোলা দেখেছো? हिंदी में सूजन कहते हैं, तो कैसा टाइप का सूजन आप देखे हो, ठीक। ये तो काफी ज्यादा हो गया, आपको हम मारेंगे, उसके बाद क्या होगा? सूज जाएगा। तो ट्रॉमा इज द फर्स्ट रीजन। वो डांटे नहीं, एग्जाम्पल दे रहे थे, बैठो। तो मारने के बाद क्या होता है? मार गए, गिर गए, तो ट्रॉमा, ट्रॉमा इज द मेन रीजन ऑफ स्वेलिंग, ठीक। उसके बाद तो दैट सॉलिड स्वेलिंग, ओके, सॉलिड। ट्रॉमा के लिए लिक्विड नहीं होता है। सॉलिड स्वेलिंग का और रीजन क्या हो सकता है? জ্বলে গেছে, will not call as swelling actually, okay, okay, ঠিক है, कोशिश করেছো। হার্নিয়া, হার্নিয়াল সোয়েলিং, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার অ্যানসারটা আমি ডিসক্রেডিট করলাম। হার্নিয়া, বার্নিং, বার্নিং blisters is not swelling. Blisters and swelling are completely different, okay, okay, because blisters can be easily put down, but swelling তুমি এভাবে put down করতে পারবে না unless you have doing a little bit OT like lipoma, when the fluid is even there, आपको कुछ घुसा के उधर से निकालना है। ब्लिस्टर वैसे नहीं ठीक करते, ब्लिस्टर अब ऐसे सही हो जाता है, आपको वो ऊपर में सफेद वाला दवाई जो लगाओगे ना वो सही हो जाएगा, उसका नाम मैं भूल गया, काफी दिन डॉक्टर ही नहीं किया हूँ वार्ड में तो भूल गया हूँ। सफेद वाला एक चूना टाइप का होता है, वो लगाने से वो सही हो जाता है, ठीक। लेकिन सोडा कार्ब, सोडा बाइकार्ब शायद ऐसा कहते हैं, राइट, सोडा बाइकार्ब बोले ना, एनी हाउ। तो लेकिन आपको ये जो लिक्विड फील्ड स्वेलिंग में आपको उसी को हम कहोगे, अगर ज्यादा हो जाए तो उसको ही कहोगे इडिमा, एंड मैसिव हो जाए तो उसको आप कहोगे एसाइटिस, दैट इज द सिक्वेली ऑफ CLD, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, ঠিক है। वो हम बाद में, वो जो অ্যালবুমিন ফ্যালবুমিন ওই যেটা বললো ওটা হচ্ছে এখানে অ্যালবুমিন আর হচ্ছে গিয়ে গ্লোবুলিন রেশিও, আর তার সাথে सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट একটা SAAG, वो सब बाद में आप पढ़ोगे, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट अभी तो है नहीं, इतना ही बोल दो तो हम धन्य हो जाएंगे, वो तो बाद में आएगा, SAAG मेडिसिन में पूछता है, ठीक। एनी हाउ, स्वेलिंग का और रीजन बताओ। हार्निया हो गया एक,
एक हो गया आपका, এটা কি হলো, ও আপনাদের এইচআর, তো হার্নিয়া हो गया एक, আরেকটা ট্রমা হয়ে গেল। নেক্সট এনলার্জমেন্ট অফ লিম্ফ নোডস, লিম্ফ নোডাল সোয়েলিং, ভেরি গুড, লিম্ফ নোডাল সোয়েলিং। তো এই ধরনের আমরা সোয়েলিং আমরা নর্মালি সলিड एंड आल्सो एनी काइंड ऑफ ट्यूमर्स, एनी काइंड ऑफ ट्यूमर्स, अंडरलाइंग ट्यूमर्स आपको कर सकते हो। और कभी कभार आपको नार्व गैंग्लियंस अगर एक साथ हो जाए तो छोटा छोटा सोली, वो छोटा सा होगा नार्व गैंग्लियंस, कभी कभार देखोगे ऐसे करके स्मॉल बोनी ग्रोथ, इनसिग्निफिकेंट बोनी ग्रोथ, लेकिन उसको हम उतना वो देखेंगे, उसमें पेन नहीं होगा, ठीक है। नार्व गैंग्लियन में भी पेन नहीं होता है, नाम में ही गैंग्लियन है लेकिन पेन नहीं होगा, वो नॉर्मल है। तो ये सब छोटा, वो छोटा सोइलिंग है, बड़ा सोइलिंग का रीजन ये तीन तुम लोग बताए वही है। नेक्स्ट, इफ द नाउ सेमी फ्लूइड, सेमी सॉलिड होते पारे, सेमी सॉलिड सब्सटेंसी भी उधर रह सकता है, ओके, दैट मींस पास फील्ड सोइलिंग। Pus is semi-solid, not complete liquid, okay, and pus is forming, so हो सकता है सेमी सॉलिड भी हो, pus थोड़ा ज्यादा पतला हो तो वो लिक्विड में आ जाएगा, ठीक, लेकिन आइडियली दैट इज ए सेमी सॉलिड सोलिंग, उसको लाइपोमा कहेंगे, काफी कबार लाइपोमा बोल के एक होता है, सर्जरी में पड़े हुए, ठीक है। एंड जनरलाइज्ड फ्लूइड फीलिंग, जो आप ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा अंदर फ्लूइड ही है, तो उसको हम कहेंगे इडिमा। इडिमा कोথায় হয়, बाइपेडल इडिमा एंड बाइपोडल इडिमा होते पारे, फेशियल इडिमा होते पारे, एंड অ্যাবডোমিনে তো হতেই পারে, যেটাকে আমরা অ্যাসাইটিস বলতে। ইডিমা দিবে शुरू होगा इडिमा देके, खत्म होगा एसाइटिस देके, अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो और दारू नहीं छोड़े तो। नाउ इसमें एक छोटा सा बात है कि कौन सी जगह पहले सोइलिंग शुरू हुआ है, उसके हिसाब से हम गेस कर सकते हैं कौन सा डिजीज से वो सफर कर रहा था। सोचो एक आदमी का तीनों जगह फूला मिला, पेट भी फूला है, इधर भी फूला है, इधर भी फूल गया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गन का प्रॉब्लम है? आपको पूछना है कि आपका कौन से एरिया में सबसे पहले सूजन आया था, लाइक इन योर लेग्स, लेग्स में अगर सबसे ज्यादा सूजन आएगा, सबसे पहले आएगा, तो उसका इंडिकेटर क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम लाइक किडनी डिजीज, उसमें देखोगे मून फीचर्स, मुंह गोल हो जाता है, मुंह सूज जाता है, ओके, कभी कभी छोटा छोटा बच्चा अस्पताल में आता है, देखोगे मुंह थोड़ा उसका फूला हुआ है, दे कम फॉर देयर एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस, ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ওদের আছে। तो इन केस ऑफ किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम माने किडनी, नेफ्रॉन, किडनी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एगुलो सब पढ़बे, बट किडनी में आपका मुंह सबसे पहले मुंह से फूलना शुरू होगा, हार्ट प्रॉब्लम में आपका पा से फूलना शुरू होगा, और बाकी लो लिवर, तो এই দিকের প্রবলেমের জন্য তোমার পেট থেকে ফুলতে শুরু হবে। কখনো তুমি লিভার ডিজিজে দেখবে না পা বা মুখ ফুলছে, ঠিক আছে, তো এটার একটা সিকুয়েলই হয়। এবার ये ट्रीट नहीं हुआ तो वो ज्यादा मतलब आसपास फैल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा, तो इसीलिए इधर उधर फैल जाएगा। लेकिन मेन थिंग इज वो तीन ऑर्गन का प्रॉब्लम से ऐसे पहले शुरू होता है। देन लिम्फ नोड्स, अगर आपको स्वेलिंग मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी आपको हर एक लिम्फ नोड्स अच्छे से चेक करना पड़ेगा, वो मेडिसिन में उतना अच्छे से चेक करना पड़ता है। अभी तुम्हें लिम्फ नोड्स का कुछ नाम वगैरह याद रखना है, बुक में देखना, काफी पूरा लिम्फ नोड्स का जो है थ्योरी में भी आपका होगा, वो रट लेना है कि कितना लिम्फ नोड्स हमारा है आसपास, ओके। नीचे तो इधर पे अम्बिलिकल, फीमोरल, इंगुइनल इधर पे हो गया, इधर पे तुम्हारा इधर पे सब है, वो सब आपको पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इधर पे एक्सिलरी, इंफ्राएक्सिलरी, वो सब लिम्फ नोड्स है, ये सब आपको बस लिस्ट हुआ है। कोई अगर पूछे तो बस हो सकता है कोई 4 एग्जाम में 4टे লিম্ফ নোডের নাম বলো, ফার্স্ট ইয়ারে ধরো এরকমই জিজ্ঞেস করবে, তো একটু বলবে কোথায় থাকে বলো, বুঝতে পেরেছো, একটু দেখে আসবে। নেক্সট, পেইন এন্ড ডিসকমফর্ট। নাও व्हेन यू आर চেকিং ফর দিস, এই কটা বাজে একটু দেখো, when you are checking for these things, okay, so हो सकता है कि accidentally that patient has not complained about any pain or discomfort before, but suddenly he says कि सर एखानटा लागছে, because you are going to check and all ना, तो आपको देखना है कई जगह उसको पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है क्या नहीं, अगर हो रहा है तो आपको पूछना है कि की होयेछिलो बोलो, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए, तो ये आपको थोड़ा नोटिस करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको स्किन डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन, और एक चीज होता है रिउबर, RUBOR, दैट मींस रेडनेस ऑफ योर स्किन, ठीक है, तो ওটা ডিসকালারেশন এর মধ্যেই আসে, तो उसका हम अलग से नहीं लिखे है। रेडनेस की होगा, कोई इन्फ्लेमेशन, सबसे पहले कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इंजुरी, ठीक, इंजुरी की वजह से डिस्कलरेशन हो सकता है, जैसे कोई कई जगह ऐसे छिल गया है तो डिस्कलरेशन हो जाएगा। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्किन डिस्कलरेशन इज फंगल इन्फेक्शन इन केस ऑफ इंडिया, आवर डेमोग्राफी, ओके, क्योंकि स्किन जो छिल गया है वो बाद में उठ जाएगा, लेकिन फंगल इन्फेक्शन वो नहीं होता है, थोड़ा काला हो जाता है, बहुत दिन लगता है थोड़ा हल्का होने में, लेकिन नहीं जाता है। तो dermatological infections are the most common cause of skin discoloration in our
কান্ট্রি স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিয়া ইজ টিপিক্যালি এত ডার্মাটোলজি কেন প্রচুর চারদিকে মানে হচ্ছে কারণ চাহিদা প্রচুর আছে ঠিক আছে প্রচুর ফাঙ্গাল ইনফেকশন হচ্ছে প্রচুর স্কিন ইনফেকশন হচ্ছে नेक्स्ट एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन इन केस ऑफ पल्पुरा और इन केस ऑफ एनी अदर थिंग्स थोड़ा पिगमेंटेशन हो सकता है ठीक है वो आपको थोड़ा चेक करना है एसएलई एसएलई माने सिस्टेमिक वो एसएलई में थोड़ा पिगमेंटेशन होगा आपका फेस में बटरफ्लाई शेपेड एक पिगमेंटेशन होता है जैसे काफी वगैरह स्किन में पिगमेंटेशन होगा तो आपको पता चल सकता है कि कुछ स्किन डिजीज होगा तो आपको उसको वजह से आप हो सकता है उसका इचिंग हो रहा है एसोसिएटेड इचिंग वगैरह कुछ हो रहा है ओके स्केबिस में ये उंगली का ये वेब स्पेस में ऐसा करके उधर पे इचिंग होगा सर पे इचिंग होगा तो यही सब एनी काइंड ऑफ अब इचिंग होगा तो कॉम्प्लेन में तो बोल ही देगा ठीक तब आप एसेस करना बाकी सारा ठीक नेक्स्ट एबनॉर्मल पाल्सेशंस क्या क्या हो सकता है शायद सर बोले होंगे कि डांसिंग कैरोटिड तारपरे होचे वाटर हैमर पल्स ऐसे करके ठीक है जुगुलर वेनस पल्स ये सब बोले होंगे उसके साथ आपको एब्डोमेन में भी 2-3 एबनॉर्मल पल्स मिलता है एक चीज को नाम है कैपेट मेडुसी सिक्वेली ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज मेडुसा बोल के ग्रीक माइथोलॉजी में देवी थे इसका हेड सर्पेंट जैसा था उसका हेड ऐसा होता था बाल ऐसे ऐसे करके बिखरा रहता था तो योर एनास्टोमेटिक चैनल्स इन योर अराउंड योर अम्बिलिकस okay will open up and each of them anastomotic channel will have volume overload so वो लोग ऐसे prominent हो जाएगा around your umbilicus it typically looks like the hair of medusa not the hair those snakes over the head of medusa ওটা कई बोलते हैं कैपेट मेडिसी ठीक है तो ऐसे करके उसका तो ये सब आपको एबनॉर्मल उधर भी आपको एबनॉर्मल पल्सेशन नहीं हुआ एबनॉर्मल स्कार मार्क्स है उसके अंदर आ जाएगा ठीक है उसमें पल्स नहीं दिखेगा लेकिन आपको दिखेगा कि कुछ एलिवेशन एंड नेक्स्ट स्कार मार्क्स एंड आधार मार्क्स स्कार मार्क्स এর মধ্যে মেয়েদের সবচেয়ে কমন স্কার মার্কস এর রিজন বলো সি সেকশন cesarean section is the most common cause of scar marks in case of women and in case of underdeveloped society husband से मार खाना ये डार्क जोक है ये मतलब कई लोग तो मतलब सीरियस हो गए अरे मजाक था ठीक है और थोड़ा ऊपर सोसाइटी में हस्बैंड मार खाता है तो बैलेंस करना पड़ेगा स्कार मार्क्स हो चाहिए एंड ऑल्सो प्रीवियसली वेरी इंपॉर्टेंट कोई ओटी किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उसके लिए कोई सिलाई पड़ा था कुछ हुआ था स्कार मार्क्स होता है कई लोगों के कई सिनेमा में देखोगे ऐसे करके इधर पे स्कार मार्क्स काट गया है कोई ठीक है बाजे एक्सीडेंट हुआ है एनी अदर काइंड ऑफ मार्क्स दैट मींस आई वाज टॉकिंग अबाउट द सी सेक्शन मार्क्स एंड ऑल एंड ऑल्सो कई अदर मार्क्स लाइक कोई टैटू करवाया है ये सब करवाया वो सब आपको देखना है ठीक है नेक्स्ट ये हो गया आपका इतना हो गया लेकिन ये सब आप डायरेक्टली किए हो अब ये जो मैं आपके साथ सामने चल रहा हूँ मैं क्लास में घुसा आप लोगों को मैं देख रहा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ ये सब आप कुछ नहीं पूछ के काफी चीज एसेस कर सकते हो तो इट्स बेटर टू नोट बिकॉज यू कैन ऑल्सो गेस what happens to the patient and how the patient is. First is gait means when the person is walking, the walking posture is your gait. গেট মানে এই যে আমি ধরো নরমাল হাঁটছি তো মোটামুটি দেখে মনে হচ্ছে নরমালি আছে এবার আমি যদি একটু এরকম ভাবে হাঁটতাম তার মানে কি you would have understood कि कुछ तो दिक्कत है then you would have asked the patient ठीक तो गेट आपको देखना है कई तरह का गेट का दिक्कत हो सकता है नॉर्मल गेट यू नो एनी abnormality you see you must ask the patient কি হয়েছে বাবা তুমি এইভাবে হাঁটছো জিজ্ঞেস করতেই হবে because you are a doctor you should know about your patient next posture means standing হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডিং পশ্চার দাঁড়িয়ে আছে আমি যখন দাঁড়িয়ে মোটামুটি নর্মাল লাগছে कई लोग ऐसे करके खड़े रहते हैं स्पेसिफिकली इन ओल्ड एज में काफी लोगों का डिस्क डेसिकेशन ये सब होता है तो वो थोड़ा ऐसे रहता है एंड ऑल्सो जिन लोगों का स्कोलियोसिस काइफोसिस पिजन चेस्ट ये सब होगा इन सब लोगों का पॉस्चर थोड़ा अलग होगा ऑल्सो पार्किंसनिज्म में ये सब में कुछ गेट का कुछ अलग अलग दिक्कत होता है आपको बाद में पढ़ेंगे वार्डलिंग गेट ओके ऐसे करके अलग अलग गेट का आप जब सीएनएस पढ़ोगे नर्वस सिस्टम के एग्जामिनेशन में तब हम पूरा ऐसे करके पूरा डिटेल में देखेंगे लेकिन दीस थिंग्स यू कैन नोटिस एंड ऑफ कोर्स यू आर सिटिंग इन अ चेंबर ए पेशेंट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू आप तो ऑटोमेटिकली नोटिस करोगे विदाउट आस्किंग एनीथिंग तो ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि मे बी यू माइट फाइंड सम क्लूज फ्रॉम देयर एंड यू माइट आल्सो नो अबाउट द पेशेंट पॉस्चर हो गया आपका मेंटल स्टेट ये এতক্ষণ আমি কথা বললাম इतना देर तक मैं बात की आप लोग आंसर किए तो लगभग लग रहा है मेंटल स्टेट सभी का सही है ठीक तो ऐसे करके जब आप पेशेंट से इतना कुछ पूछोगे ही विल आंसर इट टू यू देन इजीली यू कैन असेस हर मेंटल स्टेट हिज और हर मेंटल स्टेट ये मेंटल स्टेट सबसे पहले होना चाहिए था व्हेनेवर वी राइट हिस्ट्री इन केस ऑफ मेडिसिन सर्जरी और एनी अदर सब्जेक्ट ENT eye whatever any clinical subject
ফার্স্ট তুমি হয়তো জানবে এটা লেখে পেশেন্ট ইজ এসিসি। এসিসি মিন্স অ্যালার্ট, কনসিয়াস, কোঅপারেটিভ। Why alert? Because he knows what you are asking, he can answer properly. Conscious means वो conscious है, उसको sense है वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है. Cooperative means वो रूट नहीं जा रहा है, he is understanding what you are here to do and he is cooperating. Any deviation from these things leads to a suggestive of mental illness. अब हो सकता है किसी का कुछ दिन मूड खराब था, वो दिन अलग हो सकता है, लेकिन आपको वो असेस करना है कि मूड खराब है या वो मेंटल स्टेट खराब है. नेक्स्ट, एप्रीहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर मींस एप्रीहेंसिव डिसऑर्डर, कॉम्प्रिहेंसिव डिसऑर्डर मींस क्या हो रहा है आसपास, दिन है या रात है, टाइम का सेंस है क्या नहीं. ठीक, ये सब आपको एप्रीहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन. आप जो कह रहे हो, आप शायद कह रहे हो कि फ्रॉम सिंस व्हेन दिस डिजीज हैज स्टार्टेड, वो कह रहा है कि আমি কাল মসজিদ যাব, এরকম বলে দিল, তার মানে কি ওর অ্যাপ্রিহেন্সিভ ডিসঅর্ডার আছে, वो एप्रीहेंड करते पारछे ना तुमी की बोलछो बा किछु. ठीक है, कई लोग होता है कि डिस्टेंट मेमोरी उनका सही रहता है, लेकिन फिलहाल आसपास जो हो रहा है भूल जाता है, वो डिस्टेंट का कुछ याद है. ठीक है, तो उसका एप्रीहेंशन. कई लोग होता है जो आए हैं लेकिन क्यों आए हैं वही भूल गए हैं. दे यूजुअली accompany their relatives usually accompany them. ठीक है, सो ये तो उसका एप्रीहेंशन कॉम्प्रिहेंसिव डिसऑर्डर है. मोस्ट प्रोबब्ली वो कोई न्यूरोलॉजिकल रीजन से सफर कर रहा है. मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट आर above middle age, above middle age. next, এই এতক্ষণ ধরে আমি কথা বললাম, তোমরা অ্যানসার দিলে, definitely you can judge my speech. okay, is my or if the, so similarly if the patient will answer all these things to you, automatically you can judge her speech. what do you know understand by judging the speech? his clarity, बोलने का क्लैरिटी है क्या नहीं, vocabs, বেসিক vocabs ইউজ করতে পারছি কিনা. ওকে, এখন ঘর, অনেকে ঘর মনে পড়ছে না, ঘর কাকে বলবো, তার মানে কি देयर मस्ट बी सम मेंटल डिस्टरबेंसेस. ओके, वो उसको शब्द नहीं आ रहा है, बेसिक शब्द उनका आना चाहिए. व्हाटएवर ही इज स्पीकिंग, इफ इट्स gibberish, ओके, एंड आल्सो gibberish बोलছে কিনা, या इट्स क्लियर एंड कॉन्साइज. ओके, एंड आल्सो द एबिलिटी टू आंसर बैक. वो तो अपने से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन तुम कुछ बोल रहे हो, वो उसको एसेस करके आंसर दे पा रहा है क्या नहीं. इफ इट्स कोहेरेंट, सम पीपल दे कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बट दे कैन नॉट आंसर इट प्रॉपर्ली. उसके लिए भी वो लोअर मोटर न्यूरॉन उधर पे वो सब आपको सीएनएस में पता चल जाएगा. ठीक है, वो अलग अलग पाथवे में प्रॉब्लम है. दैट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग इज रजिस्टरिंग, बट उसका मोटर में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पा रहा है ठीक से. ठीक, उसका दिमाग में वो जा रहा है लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो वो अलग पाथवे में प्रॉब्लम है. वो सब आप जब सीएनएस पढ़ोगे सब समझ पाओगे. लेकिन स्पीच, ओके, देन मेमोरी आर 3 टाइप्स. এই কি রঙের পেন এটা কি রঙের পেন? রিসেন্ট মেমোরি. এক্ষুনি দেখলো, সকালে কি খেয়েছিল তুমি, তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট মেমোরি. কোন স্কুলে পড়তে? ডিস্টেন্ট মেমোরি. বোঝা গেল ডিফারেন্সটা? রিসেন্ট, ইমিডিয়েট, তারপর হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট, ডিস্টেন্ট. ইন্টারমিডিয়েটের একটা অন্য ভালো টার্ম আছে যেটা যখন সিএনএস পড়বে বলে দেবো. আর মোটামুটি আইডিয়াটা বোঝা গেল. 3টে মেমোরি তোমাকে চেক করতে হবে. ডিফারেন্ট নিউরোলজিক্যাল ডিজিজে ডিফারেন্ট মেমোরি এফেক্টেড হয়. বুঝতে পেরেছো? ওকে, নেক্সট, ভিশন. এই যে চশমা আমরা পড়েছি, আমাদের সবার ভিশনের প্রবলেম আছে. কি করবে? চোখের পাওয়ার জিজ্ঞেস করবে, জানে কিনা. অ্যাটলিস্ট অ্যাজ এ ডক্টর তুমি নোট করবে না তোমার পেশেন্টের কি হয়েছে, তো চোখের পাওয়ার নোট করবে. আর এমনি বলবে যে একবার চেক করে নেবে একটু মোটামুটি ডিস্টেন্স থেকে, যে দেখতে পাচ্ছি কিনা একবার দেখে নেবে, ভিশন ইজ ওকে কিনা চেক করবে. ক্যালকুলেশন এবিলিটি এন্ড মেরিট, ইটস নট অ্যাবাউট 2 or 2, ইটস অ্যাবাউট হাউ মেনি ডেটস, ইফ হি নোজ অ্যাবাউট দ্য মান্থলি ডেটস অ্যান্ড অল. মেরিট, বেসিক মেরিট, if the person is able to live his daily life properly. okay, ও কি জানে যে কিভাবে থাকতে হবে, তো বেসিক মেরিট এন্ড ক্যালকুলেশন এবিলিটি. ইফ দ্য পারসন ইজ নট ফিট, দেন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য পারসন নিডস আ অ্যাকম্পানি. ওকে, ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, নয়তো ওকে বাড়ির লোককে বুঝিয়ে সে অনুযায়ী দাবাই দিয়ে ঠিক করতে হবে, এমআরআই করাতে হবে, চেক করতে হবে, ওকে, ইইজি করাতে হবে কিছু প্রবলেম আছে কিনা. বেসিক হাইজিন, আমরা যেখানে এখানে বসে আছি, একটা পেশেন্ট ধরো এলো, তো আমরা বুঝতে পারবো যে বেসিক হাইজিন নিয়ে আইডিয়া আছে কিনা. মোস্টলি the person who actually don't worry about their hygiene are peace poor people, তাদের কিছু নেই, okay, they are majboor. But some people are actually do not maintain hygiene because of their mental state. They don't know, they don't care, okay, they don't. রাস্তায় দেখবে অনেকে একটু মাথা খারাপ মতো হয়, তারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের বাড়ির লোকরা তাদের হেল্প করে, ঠিক আছে, বাড়ির লোক ধরে ধরে নিয়ে যায়, অনেকে থাকে.
তো হাইজিনের প্রবলেম তাদের থাকবে, বিকজ দে আর নট রেজিস্টারিং এনিথিং। হাইজিন তার মাথায় কি করে ঢুকবে? ওভারঅল স্ট্যাটাস ইউ ক্যান অ্যাসেস। আর বায়োল ব্লাডারটা আমার একটু আগে ঢোকাতে হতো। এনিহাউ এটা তুমি জিজ্ঞেস করবে, এটা এখানে নয়, এটা কিন্তু এখানে বায়োল ব্লাডার স্ট্যাটাস, ঠিক আছে? বায়োল ব্লাডার স্ট্যাটাস মানে বায়োল মানে কি বলো? ফিসিস। তো বায়োলের কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে? একটা হতে পারে नॉर्मल होच्छे ना, खूब रेगुलरली होच्छे, ओके, एंड लूज स्टूल, इधर मतलब डायरिया टाइप का कुछ हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कलर चेंज ऑफ ফিসিস, কালার চেঞ্জের উপর বেস করে তুমি নেক্সট এনি কাইন্ড অফ বাওয়েল ক্লিয়ারেন্সের সময় কোনো ব্যথা হচ্ছে কিনা, পাইলস হতে পারে, কনস্টিপেশন হতে পারে, লট অফ থিং ক্যান হ্যাপেন, এন্ড ফাইনালি একদমই যদি বন্ধ হয়ে যায় কনস্টিপেশন। তো এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। একটা আজকে যে পায়খানা ঠিকঠাক হয় এরকম করে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে, কালার ঠিকঠাক হয় জিজ্ঞেস করবে, কারণ এনিথিং ক্যান বি সাজেস্টিভ। ওই ভাই তুমি পড়বে যখনই এক্ষুনি লিভারের এখানে পড়বে বুঝতে পারবে, ক্লে টাইপের যদি কালার হয় তাহলে একটা ডিজিজ ডিনোট করে। হ্যাঁ, এক্ষুনি আমি আর সব বলছি না, ওখানে সব রিলেট করবে, জন্ডিসেরই বিভিন্ন পার্ট আর কি, ঠিক আছে? একটা আনকনজুগেটেড একটা কনজুগেটেড বিলিরুবিনিয়াম গুলো হলে কালার ফালার চেঞ্জ হয়ে যায়। নেক্সট ব্লাডার মানে ইউরিনেশন, সেম কালার রেডিশ হালকা হিউ থাকলে তার মানে কি হেমাচুরিয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে তার সাথে মেইনলি বয়স্কদের ক্ষেত্রে একটু হতে পারে। তারপর when the person is urinating, the frequency of urination, okay, frequency খুব বেশি হলে ডায়াবেটিক প্রোন হতে পারে, কিডনি ডিসঅর্ডার হতে পারে, আরেকটা হতে পারে স্ফিংটারের প্রবলেম আছে, ধরে রাখতে পারে না, ব্লাডারের স্ফিংটারের প্রবলেম আছে, বুঝতে পেরেছো? সো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ক্যান হ্যাপেন ওভার এ সিম্পল থিং। তো ইউ হ্যাভ টু আস্ক অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, বুঝতে পেরেছো? নেক্সট ब्लडर আর কি হতে পারে, এটা তো আমরা বেশি বললাম, करने के वक्त जलन होता है क्या नहीं। कई बूढ़ा लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा फ्लो अच्छा नहीं है, ड्रॉप करके होता है, ठीक है, दैट मीन्स उसका कुछ दिक्कत हो रहा है, इन्फेक्शन हो सकता है, ओके गुड। और लास्टे আর কি আছে, जब होना धीरे धीरे बंद हो गया, हो ही नहीं रहा है, मतलब उसका कुछ बहुत दिक्कत है, ठीक। और किडनी का दिक्कत हो सकता है, इसीलिए उसके यूरिन आउटपुट इतना घट गया है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो रहा है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आउटपुट बहुत कम है। तो ये सब आपको एसेस करना है, और बहुत ज्यादा हुआ तो डायबिटिक या स्फिंक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको फिर उसके बाद रेनोग्राम होता है, काफी कुछ होता है, फ्लो साइटोमेट्री, वो सब करके आपको एसेस करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल यू गेट द थिंग के बुझ ले তুমি যে পেশেন্টার কি হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? তো দিস ইজ হাউ ইউ টেক এ প্রপার হিস্ট্রি। সরকারি কলেজে তো এরকম হওয়া সম্ভব নয়, বিকজ দ্য পেশেন্ট লোড ইজ নট, মানে 2 টাকায় কেউ অত দেবো না, बट द थिंग इज इन ए प्रॉपर सेटअप, मेडिकल सेटअप, आप देखोगे आप जब डॉक्टर से निकलते हो ना, 6 या 7 पेज का एक ऐसे करके पकड़ाता है, ठीक है, उसमें हिस्ट्री से लेके सब करके लास्ट पेज में एक ट्रीटमेंट प्लान भी रहता है, उसमें आपका मेडिकेशन का देखोगे पूरा हिस्ट्री रहता है, उसमें से वो काट छाट करके लास्ट पेज में वो आपका नाउ रिवाइज्ड एंड प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन करके वो देगा, ठीक है। तो इतना कुछ है। This person are busy measuring the blood pressure, you go and check these things। কি করবে তুমি, যেমন নরমাল নিঃশ্বাস হয় ওটাই নেবে, বাট মানে খুব জোরে নরমাল, যে খুব ডিপ ব্রিদিং করবে না, নরমাল ডিপ ব্রিদিং করবে, ঠিক আছে, মানে জোর করে নেবে না, ফোর্সফুল ব্রিদিং করবে না, বাট একটা মোটামুটি ডিপ ব্রিদিং করবে। তাতে কি হবে, ও যখন এখানে শুয়ে আছে, when she is lying on the bed, her dependent part is stable and straight, so her chest expansion you can see। কি করতে হবে তোমাকে, এরকম চেস্ট লেভেলে আসতে হবে, এসে তোমাকে মাপতে হবে যে কতবার ওর চেস্টটা উঠছে নামছে। নাও ইন কেস অফ গার্লস মোস্টলি চেস্ট রেসপিরেশন হয়, ছেলেদের ক্ষেত্রে মোস্টলি অ্যাবডোমিনাল রেসপিরেশন হয়, এটা তোমাদের আছে বইতে। তো অনেক সময় ছেলেদের বুকে খেয়াল করতে না পারলে খুব একটা পেটের অবশ্যই খেয়াল করতে পারবে, ঠিক আছে। তো তুমি আশেপাশে এই মেপে দাও তো, তাহলে 1 মিনিটে মাপবে, ঠিক আছে, 1 মিনিট করে মাপবে। এই তোমার নাম বলো কি? সোহিনী। এইখানে প্রত্যেকে 3টে করে ভাইটালস হবে, তারপর এক এক করে যাবে।